So today is the June batch lecture number 20, and we will be doing we had done Van de Graaff generator, its uses in the previous lecture. And today we will just start off with a few MCQs and then continue with the Van de Graaff generator. So let us see how many of you all are able to do. The first question says, the capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 6 microfarad. With the introduction of the dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad. What is the permittivity of the medium? What is the permittivity of the medium? Can any one of you tell me what are they asking? Can any one of you tell me what are they asking? What do they actually want? Yeah, but what is permittivity? Epsilon naught तो दिया हुआ है ना? Epsilon naught तो दिया हुआ है. Yes, Divya, correct. नहीं, पहले जो आपने बोला वो करेक्ट है. परमिटिविटी मतलब क्या? K is dielectric constant. K is dielectric constant. परमिटिविटी मतलब क्या पूछ रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट नहीं है ना, म्यू नॉट तो चैप्टर मैग्नेटिज्म में आता है, ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. एप्सिलॉन, व्हाट आर दे आस्किंग अस? दे आर आस्किंग अस एप्सिलॉन. क्या पूछ रहे हैं हमको? एप्सिलॉन पूछ रहे हैं. फॉर्मूला क्या रहेगा? परमिटिविटी इज एप्सिलॉन. के एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है. अब मुझे बताए, इसमें एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है, के कैसे निकालेंगे? के कैसे निकालेंगे? करेक्ट, वेरी गुड. सो कैपेसिटर पहले एयर में 6 माइक्रोफैरड था, जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो 30 हो गया. इसका मतलब हमें पता है कि C is directly proportional to K. C of any dielectric is K times C of air, है कि नहीं? Yes. So therefore C K क्या हो जाएगा? C of dielectric is 30, C of air is 6, K is 5. Now can we find out epsilon? It will become 5 into 8.85 into 10 raised to minus 12. Can you just multiply and tell me how much you're getting? Multiply करके बताए कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. Okay, so people are struggling between 1 and 3. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, इंटू 10 रेज टू माइनस 12. और अगर आपको डेसिमल शिफ्ट करना है लेफ्ट में, तो जैसे आप डेसिमल को 2 गुना लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 0.4425 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 आएगा. दैट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा मैच होगा? आपका ऑप्शन थर्ड से मैच होगा. थर्ड इज योर राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप सोल्यूशन लिखना चाहेंगे? MCQ 1 लिख के फिर सोल्यूशन लिख दीजिए. 1 मिनट देती हूँ मैं. लेक्चर 20 MCQ 1 और फिर आंसर लिख दीजिए अगर लिखना है तो. यस, आई विल वेट फॉर यू फ्यू मिनट्स.
Yes, I'll be sending. I will send both the Van de Graaff thing and this together as one PDF. 19 and 20 का single PDF होगा. Okay? क्योंकि वो last time थोड़ा issue हुआ था ना. I couldn't write on the PowerPoint, so I'll combine it and send. Okay? Moving on to the next question. Let's check the second question and see how many of you all will be able to answer. There is a short electric dipole which has a dipole moment of 16 into 10 raised to minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meters from the center of the dipole situated on the line makes an angle of 60 degree with the dipole axis. यानी कि ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं ये ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे है, ये एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री पे. Now you have to find out what is V, potential. So first of all, what is the formula? Because this is all formula checking अभी. कि अभी हम चैप्टर के एंड में है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? Potential is 1/4 pi epsilon naught P cos theta upon क्या है? Is it R? Is it R square? What is it? Formula. I want formula. R square. Very good. So R square है. ये काफी डाउट होता है सबको. R square है कि R cube है कि R है कि क्या है. So you should. This is R square potential. So tell me, substitute and tell me what you are getting V. पहले आप try करेंगे फटाफट. 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9. P दिया हुआ है डाइपोल कूलम मीटर में. cos 60 आपको देखना है cos 60 कितना है. cos 60 कितना होता है? How much is cos 60? Half. Very good. So I'm substituting and I want the calculation. 9 into 10 to the power 9 into 16 into 10 to the power minus 9 cos of 60 upon 0.6 का square, that means 0.36. So this will become 9 into 16 into 1/2. ये 36 into 10 raised to minus 2 into 10 to the power. ये कितना हो जाएगा? -9 और ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है.
परफेक्ट आएगा. Yes, I hope everyone is getting 200 volt. This is the right answer of the second part. That is the second question. Now, all these questions that you're doing are examination questions. ये नीट और जेई मेन और एमएचसीईटी टाइप है और ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है. सो आई एम डूइंग ऑलरेडी विच हैज कम. जस्ट गिव यू एन आइडिया कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ताकि आपको भी पता चले कि एग्जाम में कैसे पूछते हैं वो लोग. Give you 1 minute before I go to the next. So I hope you're recollecting the formula. ये सिर्फ एक फॉर्मूला रिकलेक्शन के लिए मैंने रखा है ताकि आप भूल नहीं जाएं. Completed? Okay. Let's try the next one. This I expect everyone to know. A spherical conductor is there जिसका radius 10 है. 0.6 का स्क्वायर अथर्व. 0.6 का स्क्वायर 0.36. डिनोमिनेटर में r स्क्वायर था ना बेटा. So 0.6 का स्क्वायर is 0.36. ये हमारा एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कैपिटल R है. And it has some charge which is distributed uniformly. The charge distribution that is uniformly done, that charge is nothing but 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb. What is the magnitude of the electric field at a point? यानी कि एक पॉइंट हम बाहर ले रहे हैं क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है तो आपको समझा है कि पॉइंट बाहर है क्योंकि पॉइंट का वैल्यू कितना दिया उन्होंने 0.15 पे है. Point is at 15 centimeters. So is it outside or is it inside? So it is very clear the point is outside because it is 15 centimeters. अगर बाहर है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 1/4 pi epsilon naught q upon r square. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. राइट. 1/4 pi epsilon naught q upon r square आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. Can you calculate now? Quickly calculate करो. 9 into 10 to the power 9 into, I'll adjust this as 32 into 10 raised to minus 8. आपका चार्ज है, मैंने वो माइनस पावर को दे दिया और r स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 सेंटीमीटर में है तो 10 रेज टू -2 का कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा. So can you calculate and tell me how much you are getting? 32/25 कुछ आ रहा है यहाँ पे और 10 to the power 5 आ रहा है. 32/25 देखो कितना आ रहा है. Which option matches? Yes, very good. सबको आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन आना चाहिए.
Yeah, take it down if you want. This is MCQ question number 3. So I'm just touching. याद आ रहा है ये सब फॉर्मूला याद आ रहा है? ये गॉसेस लॉ का पहला डेरिवेशन था. एक एक फॉर्मूला याद करा रही हूँ थोड़ा सा. Is it over? Yes, but in the exam, it doesn't click, Manav. It's not that it is not easy or difficult or whatever. But in the exam, you have exactly 20 seconds. So that time students do make mistakes. Yeah. The easy questions, but they make some silly mistakes. Because if you see the options, exam में देखो कैसे option आ रहे हैं. अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कोई चारा ही नहीं है. मतलब आप यहाँ गेस वर्क नहीं चलेगा, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा. तो द डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड जो एक्चुअल नीट या जेई में आते हैं, तो उनके ऑप्शंस देखने का, ऑप्शंस बहुत नजदीक होंगे, वेरी वेरी क्लोज. सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो चारों ऑप्शन 1.28 है. तो खेल किसका है? पूरा पावर का खेल है, राइट? सो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है. सो दैट्स व्हाट. एक पावर आगे पीछे हुआ तो गया. सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ऑप्शंस दे गिव. लेट्स ट्राई दिस वन. ये बहुत इजी है. सो देखते हैं किस किस को आ रहे हैं. इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब. एक वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट. The moment I say that the electric potential is found to be 5 volt throughout, what do you think this structure is? मतलब ये क्या है? ये जो रीजन ऑफ स्पेस है उसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब ये कैसा स्पेस है? किसको क्लिक होगा देखते हैं. वेरी गुड. ईशान को पहले क्लिक हुआ है. भव्या, ओके. राज यादव, वेरी गुड. तो ये तीनों बता रहे हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल है. सो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का वैल्यू दिया है वो आपको मिसगाइड करने के लिए दिया है. 0.2 मीटर क्यूब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक वॉल्यूम का वैल्यू दिया है, यू नो. सो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने वहां पे वॉल्यूम दे रखा है, तो आपका ध्यान वो वॉल्यूम पे जा रहा है. आप सोच रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला वॉल्यूम यूज कर रहा है. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट. ये जो 5 वोल्ट थ्रू आउट बोल रहे हैं मतलब इक्वी पोटेंशियल है. और पूछ क्या रहे हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सो वी नो द रिलेशन between electric field and potential, that is E is equal to minus the difference in potential upon dr. ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. वेरी गुड. सो आदित्य तक्षिता ने आंसर दे दिया है. ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है. कैसे होगा? एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में भी 5-5 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस, बिकॉज डीवी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन वोल्टेज. डिफरेंस इन वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंस इन वोल्टेज होगा 0. सो डीवी अपॉन डी
R is going to give us an answer which is practically what, 0, because it is same everywhere, and hence the option is 1. 1 is your right answer. So in a region of space with this volume, the electric potential is found to be 5 volt, which is equipotential throughout the surface. The magnitude of electric potential in this region is 0. Why is it 0? Because equipotential surfaces पे at every point the potential remains constant. Yeah, so it is equal everywhere. So difference नहीं हो सकता ना. जहां potential difference होगा वहीं पे charge का flow होगा. Next question. The variation of electrostatic potential with distance from the center of a positively charged metallic thin shell of radius capital R is given by. ये तो सबको आना चाहिए. Let's see who identifies the graph. Very good. Aditya is the first one to identify. Saurabh Mishra, very good. Manav, good. बाकी लोग गलत दे रहे हैं. ईशा, good. Yes. Atharv, good. Bhavya, correct. Potential, Bhakti, correct. आप लोग सी ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं? नंबर 3 है. 3 को 3 ही बोलना पड़ेगा. ये आपका शेल है और यहाँ पर एग्जाम में 1 2 3 4 है. नीट में 1 2 3 4 है. ABCD नहीं आता है. 1 2 3 4 आता है. ये शेल है और अगर आपको याद है हमने पढ़ा था पोटेंशियल वर्सेस आर. पढ़ा था कि नहीं? हमने ये क्लियरली पढ़ा था. मैंने आपको डेरिवेशन दिया है इसका. और फिर यहाँ पर सरफेस पे मैक्सिमम होता है, अंदर भी कांस्टेंट होता है और फिर जैसे हम बाहर जाएंगे वो कम हो जाता है. तो पोटेंशियल इज यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगा, ऑन द सरफेस भी कांस्टेंट रहेगा और अंदर भी कांस्टेंट रहेगा, और बाहर जैसे जैसे हम जाएंगे वो कम होता जाएगा. तो कौन सा ग्राफ था यहाँ पे? थर्ड वाला ग्राफ, भूलना नहीं है. ओके ओके, ये देखते किसको आएगा. अ hollow metal sphere of radius capital R is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. ये मैंने नीट के 2020 के पेपर से लिया है, अभी लास्ट ईयर का पेपर. So a hollow metal sphere of radius capital R is uniformly charged. The electric potential due to the sphere at a distance r from the center. बहुत सिंपल है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फीयर, गॉसेस का पहला कंडीशन. गॉसेस का पहला कंडीशन क्या लग रहा है आपको? ध्यान से पढ़े और उसको समझे. क्या था वो? स्फीयर था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था, और ये कैपिटल आर है. आप मुझे बताओ, अंदर का मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर है कि नहीं? ऑन द सरफेस मतलब, ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और बाहर मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. अब आप मुझे बताएं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा अंदर, चलो स्टार्ट करते हैं. अंदर कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड? अंदर कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर 0 है. सरफेस पे वो मैक्सिमम होता है कि नहीं? और फिर डिक्रीज हो जाता है फिर जैसे जैसे हम आ, जाते हैं. अब भी आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है. अंदर डिक्रीज नहीं आएगा ना, अंदर तो 100% 0 है. तो कौन से ऑप्शन के तरफ ध्यान जाना चाहिए? इट्स आइदर 2 और इट्स 3. 4 जो लोग बोल रहे हैं बच्चों,
जो लोग ABCD ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, दिस इज एग्जामिनेशन में वही फॉलो करना पड़ता है जो दिया है। आपके स्क्रीन पे ABCD नहीं है, आपके स्क्रीन पे 1 2 3 4 है। ध्यान दे, देखो वो छोटा सा ध्यान भी इंपॉर्टेंट है। It's 1 2 3 4. If I ask you to write 1 2 3 4 as answer and you write ABCD, you're going to get a 0. Yes, so therefore the option is second option. 0 as R increases for R less than R, है कि नहीं? जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वो क्या हो जाए, 0 ही अंदर, and decreases as R increases for R greater than capital R. So English could be quite confusing sometimes, but it is the second option. कभी कभी अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, आपको पता है कि जो आपकी मदर टंग होती है, आपका दिमाग वैसा सोचता है। इंग्लिश आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज है, सच में बता रही हूँ। लर्निंग स्किल में अगर आप इंग्लिश में पढ़ते नहीं समझ में आया, किसी ने आके आपको हिंदी में समझा दिया, अच्छा ये बोल रहा था क्या, तो कभी कभी लैंग्वेज का भी कंस्ट्रेंट होता है। when you're studying, try to think it in your language. अगर आप गुजराती मीडियम है तो गुजराती में आप दिमाग में उसको स्टोर करेंगे ना, तो वो दिमाग जल्दी स्टोर करता है, क्योंकि आपकी जो मदर टंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो चीज आप पढ़ते हैं, आप ट्राई करके देखो, वही चीज को अपने लैंग्वेज में दिमाग में स्टोर करो, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, क्योंकि द ब्रेन अंडरस्टैंड्स योर मदर टंग। सो रिमेम्बर दैट, कभी कभी अंग्रेजी है ना इधर की इधर, ये फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए। है तो हम Indians and we know all languages. I mean, we are pretty good at learning languages, but remember your mother tongue is your savior. कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लगाना, उसको अपने मदर टंग में कन्वर्ट करके दिमाग में स्टोर करो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना तुमको आएगा। दिस इज द ट्रिक, दिस इज व्हाट you need to remember. Now, let's go back to my Van de Graaff generator. I hope you enjoyed the few questions. I'm just going back to my Van de Graaff generator. So I will keep checking your MCQs from time to time to check. So these questions that you did today are from the recent paper of NEET. I'm sure you found it easy. Fifth question कौन सा, ये वाला चाहिए? Okay, I'll wait for 1 minute. Screenshot मार सकते हैं आप। ग्राफ वाला चाहिए, अच्छा। नहीं, आपको ये क्वेश्चंस, हाँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और वैसे भी PDF तो मिल नहीं रहा है ना। यस, सोचो ये 2020 का पेपर है, इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट जब पेपर डिफिकल्ट नहीं रहता है तो प्रॉब्लम क्या होता है? इट वाज नॉट डिफिकल्ट, आई कैन सी मेनी ऑफ यू ऑल सेइंग कि पेपर इजी था, बट जब पेपर इजी होता है तो गड़बड़ क्या होती है, क्या हो जाता है? कंपटीशन बढ़ जाता है बच्चा। पेपर इजी होता है ना, फिर कंपटीशन एकदम धूम धड़ाम बढ़ जाता है, यानी कि सबको मार्क्स आ गए, सबको मार्क्स आ गए, मतलब इतना टाइट हो जाता है कि फिर कट ऑफ भी बढ़ जाता है। Now let's go back to our Van de Graaff generator and recollect. तो याद है डोम था, अब यहाँ पर एक पुली था, एक पुली सिस्टम था। चलो देखते हैं किस किस को याद है, ये एक पुली सिस्टम था, और उसके ऊपर एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, जैसे आप एयरपोर्ट्स में देखते हैं वैसे कन्वेयर बेल्ट है, और ये बेल्ट घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे घूमेगा। इट्स अ पुली सिस्टम। आई होप यू कैन इमेजिन दिस, ये एक पुली सिस्टम है। अब मैं ये एक्सप्लेनेशन आपको दो तरीके से देने वाली हूँ, तो आप ध्यान दें। आई एम गोइंग टू गिव यू इन टू डिफरेंट वेज, one according to what the textbook is and one which is practically according to NCERT. तो दोनों explanation आपको दे रही हूँ।
स्लाइट ही डिफरेंस है, तो देखते हैं कि वो डिफरेंस क्या है। अब इन्होंने क्या किया, एक ब्रश लिया है, क्योंकि हमने कोरोना डिस्चार्ज पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने पढ़ा था कि पॉइंटेड सर्फेसेस रहेगा तो वहां पे चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है। तो अगर आप ब्रश के ब्रिसल्स के टिप पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा चार्जेस रहेगा। अब इन्होंने इसको, अगर आपको याद है, एक बहुत बड़े पावर सप्लाई मतलब 50 केवी वोल्टेज के पावर सप्लाई को इसको रखा हुआ था। इसकी वजह से ये ब्रशेस के पास बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इनके पास, क्योंकि उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रशेस आर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ब्रशेस जो है इस बेल्ट पर पॉजिटिव चार्जेस को डालेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्प्रे ब्रशेस। They are called as spray brushes. So they are spraying the charges onto the conveyor belt. और ये चार्जेस जो है ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर एक दूसरा ब्रश है जिसको हम कलेक्टर ब्रश बोल सकते हैं। अब ये जो चार्जेस ऊपर जाते हैं, ये चार्जेस को ये कलेक्टर ब्रश जो है वो कलेक्ट करेगा। ये जो चार्जेस है वो कलेक्टर ब्रश क्या करेगा, कलेक्ट करेगा उसको। और आपको पता है कि जैसे ही चार्ज अंदर आता है तो वो क्या कर देता है, उसको बाहर भेज देता है। याद है एक्सप्लेनेशन? वो कभी भी अंदर चार्ज को रहने नहीं देगा, और चार्जेस सारे जाके थोड़ा थोड़ा जाके कहाँ हो रहे हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बाहर। दैट मीन्स दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस until the entire dome becomes very much as 10 से 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका पोटेंशियल हो गया। यस, बाहर फेंक देता है और पूरा चार्ज कर देता है, और 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आया, दिमाग चलना चाहिए। मैम ने कहा था कि पोटेंशियल अंदर और बाहर सेम रहता है, यानी कि अगर बाहर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अंदर भी 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। It is going to be same inside and outside of that dome shape. So now हमने एक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, और इसको यहाँ, यानी कि ये जो एक ट्यूब लिया हुआ है, नॉट एन इलेक्ट्रोड, it's a tube that we have inserted inside the dome. हमने बड़े स्मार्टली क्या किया है, इस डोम के अंदर एक ट्यूब डाल दिया है, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब डाल दिया है, और इसके नीचे जो है हमारा टारगेट रखा हुआ है जिसको हमने ग्राउंड किया है। जो टारगेट होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जिसको हमें बॉम्बार्ड करना है, याद है हमें स्ट्राइक करना था, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो न्यूक्लियस को हमें तोड़ना था। इन अदर वर्ड्स वी आर डूइंग आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फिशन। आप समझ रहे हैं, आर्टिफिशियली हम हमारे न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली जस्ट लाइक साइक्लोट्रॉन। बट साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर का। अगर आपको याद है ये पूरा प्रिंसिपल जा रहा है, आई टोल्ड यू ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। In cyclotron, you are changing small v. In electrostatics, हम कैपिटल V के साथ खेल रहे हैं। हम पार्टिकल को क्या देने वाले हैं, V देने वाले हैं। हम पार्टिकल को क्या देने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी देने वाले हैं। हम क्या जेनरेट कर रहे हैं, why is it called Van de Graaff generator? It is called Van de Graaff generator because it is creating electrons or particles with very high velocity. So that is to be understood. Generation का मतलब पैदा करना नहीं होता. Sometimes it is to create or to kind of change the existing particle. So you would say that you're changing the existing particle. So जो existing particle है उसको हम क्या दे रहे हैं, velocity दे रहे हैं.
जैसे आप स्टूडेंट है, हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको एकदम स्ट्रांग बना रहे हैं, हम आपको बहुत ही क्या बना रहे हैं, वी आर मेकिंग यू स्किल्ड, ताकि आप एक एग्जामिनेशन दे सके। आपको इतना देना चाहते हैं नॉलेज, इतना स्पीड के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि यू विल गो एंड विन दैट एग्जाम। सो दैट्स द होल थिंग, यू आर जनरेटिंग समथिंग, यू आर मॉडिफाइंग समथिंग। सो ये टारगेट जो है ये नीचे होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीलियम गैस रिलीज करते हैं। कहाँ पर, इसके अंदर हम लोग हीलियम गैस को रिलीज करते हैं। अब ये जो हीलियम गैस के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इस ट्यूब के अंदर है। अब ये ट्यूब कहाँ है, डोम के अंदर है। इसका मतलब है हर एक पार्टिकल को कितना मिलेगा, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स 10 मिलियन वोल्ट, आप समझे, 10 million electron volt will become the energy. 10 million volt will be the energy, not the, so it don't get confused over here. So ये 10 million volt उसका क्या है, वोल्टेज है। 10 मिलियन वोल्ट उसका वोल्टेज है। जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तब हम बोल सकते हैं कि आई कैन टॉक अबाउट द एनर्जी पार्ट। सो ये 10 मिलियन वोल्ट है। ठीक है, अब जैसे ये पार्टिकल्स को 10 मिलियन वोल्ट मिलेगा, टारगेट देखो कहां पर है, ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट। हमें पता है कि चार्जेस ऑलवेज गो फ्रॉम वेयर टू वेयर, द चार्जेस ऑलवेज गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स वो यहां से फुल स्पीड पे लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। they always go from higher potential to lower potential. They always go from 10 million volts to the ground, and therefore we say कि bombardment हो गया है। And this entire thing is encapsulated. If you remember, there's another dome which covers it. हम इस पूरे इसको पूरे आइसोलेट कर देते हैं। मैंने आपको डायग्राम लास्ट टाइम दिखाया था। पूरा आइसोलेट करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस है दे मस्ट नॉट चार्जेस, दीज पार्ट्स ऑफ द मशीन शुड नॉट स्टिक टू ईच अदर, बिकॉज एक पॉजिटिव है, यू अंडरस्टूड, तो दूसरा जो है दे आर गेटिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दूसरा नेगेटिव होता रहेगा, एंड देयरफॉर दीज चार्जेस मस्ट नॉट फेस अ प्रॉब्लम। सो दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड. Now I am explaining to another way, which I feel is more logical way of understanding. Now, what is the logical way of understanding? Pay attention. हम ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, डोम है, नो, उसमें कोई चेंज नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपका पुली है, और पुली के ऊपर जो बेल्ट है वो वल्कनाइज रबर का बेल्ट है। रबर इज अ डाइलेक्ट्रिक, रबर इज एन इंसुलेटर। तो वो जो होता है, वो जो बेल्ट जिस मटेरियल का बना होता है, दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब ये जो ब्रश की बात मैंने यहाँ पर की है कि ये ब्रश यहाँ लगाया है, ये ब्रश को मैंने 50 kV का वोल्टेज दिया है, देयर इज अ लार्ज वोल्टेज गिवन टू दिस ब्रश। अब क्या होता है कि नाउ दिस no Atharva, there is no current here. Please do not confuse static with conductor. यहाँ पर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में बात नहीं कर रहा है। We are not talking about electrons here. यहाँ पर ये जो ब्रश होता है, यहाँ पर जो ब्रश होता है, वो ब्रश की जो ब्रिसल्स है, ये बहुत ही क्या रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। कैसे है ये, बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसको बहुत हाई वोल्टेज मिल रहा है, और ग्राउंड मतलब 0 होता है। अब ये ब्रिसल्स क्या करते हैं, ये जो वल्कनाइज रबर है, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये हाई पॉजिटिव चार्ज इस वल्कनाइज रबर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। You are getting it? It will extract the electrons because it is very high potential. There'll be a force of attraction between the bristles and the
डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. अगर ऐसा हुआ, हु लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, हु लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, who lost electrons, the rubber lost electrons. Agar aisa hua that they lost the electrons, that means they develop a positive charge. Are you getting the explanation? They develop a positive charge, और ये positive charge जो है, this positive charge will go up because this conveyor belt is anyway moving. So ये जो section है जहां पर positive charge, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया तो यहाँ positive है. अब यहाँ पर एक ब्रश है, जो यहाँ पर एक ब्रश कनेक्ट किया है हमने. अब ये ब्रश को क्या होने वाला है, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये जो बेल्ट के पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये ब्रश कॉपर का बना होता है. ये ब्रश जो है कॉपर का बना होता है, उसके अंदर ढेर सारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो कंडक्टर होता है. तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो रबर के हैं, वो इस ब्रश के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो अभी कौन पॉजिटिव बनेगा, अभी कौन पॉजिटिव बनेगा? हु लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स दिस टाइम? हु इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स? यस, द ब्रश. The brush lost the electrons and it became positive charge. Does this make sense to you? Does this make sense to you? तो किसने लूज किया इस बार? इस बार ब्रश ने अपने इलेक्ट्रॉन्स खोए, यानी कि वो पॉजिटिव बना, और फिर वो चार्जेस को क्या करेगा, ऊपर भेज देगा, बिकॉज चार्जिंग सरफेस पे होगा. इस तरीके से डोम का चार्जिंग होता है. और जब वो 10 मिलियन वोल्ट बनेगा, फिर रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज सेम. फिर अंदर भी 10 मिलियन वोल्ट बनेगा, और इसके अंदर हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब डाला. इस ट्यूब के अंदर हमने हीलियम गैस डाल दिया. हर एक पार्टिकल 10 मिलियन वोल्ट बन जाएगा. कैसे 10 मिलियन वोल्ट बनता है, कि आपको ऐसे सोचना है, जैसे एक वायर टूटा हुआ है आपके घर में, आप क्या उस टिप को जाके टच करेंगे? अगर सप्लाई ऑन है तो क्या आप उस टिप को जाके टच करेंगे? क्यों नहीं टच करेंगे आप? क्यों नहीं टच करेंगे आप? क्योंकि आपको पता है कि वहां, यस, वहां शॉक लगेगा. आपको समझ में आ रहा है? वैसे आपको समझना है, ये 10 मिलियन वोल्ट का जो डोम है, उस पर जाके पार्टिकल टच कर रहे हैं. जैसे पार्टिकल टच करेंगे, उनको वो एनर्जी मिलेगी, उनको वो वोल्टेज मिलेगा, उनको वो पोटेंशियल मिलेगी. समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इमेजिनेशन है. और फिर यहाँ पर जो गैस है, वो उसके सारे पार्टिकल्स को मिल जाता है 10 मिलियन वोल्ट, और टारगेट यहाँ होता है और यहाँ ग्राउंड होता है. 10 मिलियन वोल्ट बहुत जरूरी है बेटा. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज लेगा, उतना ज्यादा बॉम्बार्डमेंट करेगा. धमाका करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए. तुम जाके फुल स्पीड से आने वाले हो, तुम्हारे पास वोल्टेज कम है, तो फिर क्या हुआ? ये तो मैं आपको रेंज बता रही हूँ कि धमाका तुमको करना है, तो ये तो रेंज है. साइक्लोट्रॉन का रेंज कितना है? साइक्लोट्रॉन का रेंज कितना है? हाउ मच डज इट प्रोड्यूस? वो भी तो जनरेट करते हैं, वो कितना प्रोड्यूस करते हैं? जाके ढूंढो. यहाँ 10 मिलियन वोल्ट का पार्टिकल जनरेट होता है. सो दिस इज अ कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन. और ये जाके उधर बॉम्बार्ड करेगा. फिर उसको हम लोग एक डोम में पैक करते हैं, मतलब ये पूरे डोम स्ट्रक्चर में उसको आइसोलेट करके डाल देते हैं. अभी समझा? सो देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. दिस इज द लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. बट इन योर टेक्स्ट बुक दे आर टॉकिंग अबाउट स्प्रेइंग, तो यू स्प्रे. इतना ही तो बोलना है, बट अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है. उनको स्प्रे करना है, स्प्रे करो. तुम लिखो द ब्रश इज स्प्रेइंग ब्रश. सो विच brush, the first brush is taking the electron and giving positive charge, and the other brush is losing the electron and becoming positive charge. उतना ही दोनों में डिफरेंस है. मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन, बाकी सब सेम है अथर्व. मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप वैसा भी सोच सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ लॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग that how this exact process works. If the spraying concept doesn't sit in your head, you know, so both ways are absolutely correct. So this is the explanation for
the Van de Graaff generator. Have you understood this? These are all metal. They are all made of copper. They're all made up of copper. So I have a few MCQs to do. So I hope you understood the Van de Graaff generator. You can read through the textbook. You can read about the Van de Graaff generator. And if you have any doubt, then you can ask me about the Van de Graaff generator. Meantime, can you try this MCQ? Can you tell me the answer for this one? It's again a very important question. ये exam में पूछा था. I think this is 2019. So this is a very important question. I would say it's a good question. There are 2-point charges, A and B, having charges plus Q and minus Q respectively, placed at a certain distance, and a force acting between them is capital F. यानी कि पहला पॉइंट ये समझ रहा है कि कैपिटल F is, what is capital F? 1 upon 4 pi epsilon naught. If I'm taking the mod of it, I can say it is Q square upon R square. Agreed? Is this correct? Now, in the second part of this, कुछ पूछा है उन्होंने. In the second part of this, अगर आप read करते हैं इसको ध्यान से, so it's a very important question. It says if 25% of the charge of A is transferred to B, 25% of charge A is transferred to B. का मतलब क्या होता है? 25% of the charge, 25% of charge of A is transferred to B का मतलब होता है QA, the charge of A is nothing but Q, जो ओरिजिनल Q था, माइनस Q by 4. आपको समझ रहा है? 25% का मतलब होता है 1/4. Half is 50%, right? 3/4 is 75%. So when I say 25% of the charge of A is transferred to B, that means that it is Q minus Q by 4. क्योंकि पहले का charge plus Q था, minus Q by 4. That means how much will I get here? How much is Q? Yes, it will be 3Q by 4. अब Q A ने किस A ने B को दिया, यानी कि A में माइनस होगा, बट B में क्या होगा? चार्ज ऑफ B में क्या हाल है? उसके पास माइनस Q था, अब प्लस Q by 4 आया. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है -3Q by 4. अब आप देखो आपके चार्जेस थोड़े चेंज हो गए. पहले क्या था? प्लस Q और माइनस Q. अभी क्या है? प्लस Q by 4 एंड माइनस Q by 4. अब आपको वापस फोर्स चेक करना है. वापस फोर्स चेक करना है तो अभी नया फोर्स F डैश बोल देते हैं. क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगेन आई एम टेकिंग द मॉड ऑफ इट. अगर हम लोग मॉड लेते हैं तो क्या मिलेगा? क्या हमें मिलेगा? 3Q by 4 the whole square upon R square. Are you getting everybody? 3Q by 4 the whole square upon R square. अब हम इन दोनों का जो है, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है.
सो अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे, एफ डैश अपॉन एफ कर लेते हैं, तो एफ डैश अपॉन एफ में क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। क्यू को देख लेते बिकॉज बाकी सब तो सेम है, तो एफ डैश क्या होगा, 3Q अपॉन 4 द होल स्क्वायर, है कि नहीं, मल्टीप्लाइड बाय आई कैन से 1/Q स्क्वायर, चलेगा। So what will this become? This will become nothing but 9Q square upon 16Q square. इसका मतलब है Q square और Q square कैंसिल हो जाएगा, F डैश मिल रहा है 9/16 और F को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ. This is the required answer. Did you understand how to do it? It's very simple. It was not difficult. पहले दोनों के बीच का हमने फोर्स निकाला, उसके बाद हमने क्या किया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो 25% बोला है तो Q/4, 50% बोला होता तो Q/2, अगर 75% बोला होता तो 3Q/4, है कि नहीं। सो एक दोनों का चार्जेस मिल गया, एक बार दोनों का चार्जेस मिल गया, हमने फोर्स के फॉर्मूला को वापस लगाया और फिर पहले के फोर्स और अभी जो फोर्स मिला है, दोनों के बीच का हमने क्या ढूंढा, रिलेशन ढूंढा। इस तरीके से वी गॉट F डैश इज 9/16 टाइम्स ऑफ F. Please tell me when it is completed.
Completed? Okay. Now this question, I'm going to explain to you something very important. I want everybody's attention here. This will be the last topic I cover, so I want everyone's attention here. This attention, this particular question is related to displacement current. So in the chapter of MEEC, you must have come across Ampere's circuital law, which is closed integral of B bar dot DL bar is equal to mu naught summation of net current. This is called as the Ampere's circuital law. So this is there in the chapter of MEEC, Ampere's circuital law. Now what happens is that it means that wherever there is electric current around it in a closed area, there is magnetic field. It has been given in the chapter. You must have done this, haven't you done? It's a straight conductor and current is flowing through this conductor. And if current is flowing through this conductor, the magnetic field is always around the conductor in a closed loop. This is given by the right hand rule. राइट हैंड थंब रूल कहते हैं उसको, और ये राइट हैंड थंब रूल से हमें मिल रहा है द एम्पियर्स सर्किटल लॉ. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, इसका ये मतलब है जहां जहां कंडक्टिंग करंट है वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको बताया किसने? एम्पियर्स सर्किटल लॉ. नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट हिम. हिज नेम इज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. Because of him, we have a lot of technology today. Electromagnetic waves ka concept. He is the one who had come out with the 4 Maxwell's equations. Electromagnetic, theory ka wo base hai. Have you heard about him? His name is James Clerk Maxwell. मैक्सवेल ने एम्पियर से कहा, भाई तेरा जो इक्वेशन है वो बड़ा अधूरा सा है, मतलब ये पूरा नहीं है. क्यों? क्योंकि जो करंट की तू बात कर रहा है वो सिर्फ वायर से जाने वाला करंट है. पर जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक होता है ना, यहाँ पर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक होता है और हम उसको बैटरी लगाते हैं. हम जब बैटरी लगाते हैं तो करंट जो है वो इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है और फिर हमारे प्लेट को क्या करता है? पॉजिटिव करता है. बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन दूसरा प्लेट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. फिर वो करंट जो है वापस बैटरी की तरफ आता है. तो वो करंट कैपेसिटर के उस पार कैसे गया? यानी कि उसने कहा कि देखिए चेक करते हैं. हम लोग एक कंपास ले लेते हैं. So they took a magnetic compass and they kept a compass here. Can you see this compass here? यहाँ पर एक कंपास रखा और एक यहाँ पर रखा. You know what magnetic compass will do? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्ट होगा. जैसे अपना डायरेक्शन वाला कंपास दिखाता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एक कंपास होता है. अब उन्होंने ये देखा तो एम्पियर ने क्या कहा था? जहां वायर है, देखो यहाँ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, जहां वायर है उसके चारों तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड होता है. यानी कि अगर कंपास यहाँ रखा तो ये डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए. इसका मतलब है ये तो सर्टेन है कि ये वाला तो डिफ्लेक्ट होगा, जो वायर के पास है वो तो डिफ्लेक्ट होगा ही, क्योंकि जहां जहां करंट है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. बट उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, जबकि भाई वहां तो कोई वायर नहीं है, वहां तो गैप है, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. कभी कभी तो एयर भी होता है, डाइलेक्ट्रिक भी नहीं होगा, वहां एयर भी होता है. तो ये करंट गया कहाँ से? बिकॉज हमें बताया जाता है कि करंट नीड्स अ पाथ टू फ्लो.
है कि नहीं? हमेशा बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इट ऑलवेज नीड्स अ पाथ टू फ्लो, और यहाँ पर तो पाथ ही टूट गया है. So Maxwell said you have to modify your equation and you have to write your equation in this manner. It is a summation of, it is a summation of IC plus ID. It is a summation of conduction current plus displacement current. कंडक्शन करंट वो करंट होता है, मतलब आज से आपका दिमाग और भी स्ट्रांग होता गया, आपको ज्यादा नॉलेज मिल रहा है कि करंट सिर्फ एक नहीं होता. देयर आर टाइप्स ऑफ करंट. वन इज द कंडक्शन करंट विच ट्रेवल्स थ्रू द वायर्स. जहां जहां आपको कॉपर केबल दिख रहा है, जहां जहां आपको वायर की कनेक्शन दिख रही है, वहां तो करंट है ही. बट आपके फैन के ऊपर का कैपेसिटर भी तो चल रहा है कि नहीं? जबकि उसके अंदर तो इंसुलेटर है. वहां पर जो करंट है, जो कैपेसिटर्स में जो करंट है, क्योंकि करंट एक साइड से दूसरे साइड डिस्प्लेस हुआ. करंट जो है एक साइड से दूसरे साइड डिस्प्लेस हुआ, यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट. उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट. तो जब आप एमईसी पढ़ रहे हैं या आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तब आप कौन से करंट की बात कर रहे हैं? कंडक्शन करंट. पर जब आप कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तब जो करंट की बात हो रही है, वहां उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट. तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा है, आई हैव टॉट यू Q इज इक्वल टू CV, है कि नहीं? Q is equal to CV, ये तो सबको पता है. द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर. इसका अभी डेरिवेटिव निकाले. dq by dt is equal to C dV by dt. What is the rate of charge? dq by dt क्या होता है? dq by dt होता है displacement current. This is C dV by dt. That means this is one of the formula of displacement current which I want you to remember. इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे MHCET में और कई बार क्वेश्चंस पूछे नीट में. सो आई बिलीव दैट यू शुड बी एबल टू नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. एक और फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt. ऐसा भी एक फॉर्मूला है, epsilon naught d phi e upon dt, where you can identify this. ये अपना क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. और ये वाला जो है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जहां पर भी d बाई dt आता है ना, वहां रेट वर्ड आएगा. जहां पर भी d बाई dt आता है ना, वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्योंकि कैपेसिटर झट से चार्ज थोड़ी ना होता है, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज होता है. सो देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एंड व्हाट इज dv by dt? दिस इज रेट ऑफ, this is the rate of change of potential. This is rate of change of potential. So there are two formulas to this which you have to understand. So there are two currents here. One is conduction current and the other is displacement current. Then you will be able to understand this particular question which is asked in the examination. First, please take this down. This is the modified Ampere circuital law. This is the modified Ampere circuital law, which I have given you here, which you will study in detail in the chapter of MEEC. So this is the modified Ampere circuital law. Ampere circuital law याद रखना is analogous to Gauss's theorem. याद है गॉसेस थ्योरम में कैसा होता था? हम एक सरफेस के ऊपर एक सरफेस इमेजिन करते थे. वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ में वायर के चारों तरफ लूप इमेजिन करते हैं. लूप. सीढ़ी देखा है आपने? सीढ़ी
सीडी देखा है, म्यूजिक सीडी, सीडी के बीच में एक होल होता है, राइट? वहां पर अगर आप अपना फिंगर डाल देंगे, फिंगर डालो उसके अंदर से, तो सीडी बैठ जाएगी आपके फिंगर पे, है कि नहीं? जब आप एक सीडी लेके आपके फिंगर पे बिठा देंगे तो आपको जो दिखेगा, आपको जो फील हो रहा है वही हो रहा है। आपका फिंगर करंट है और वो सीडी मैग्नेटिक फील्ड है। इमेजिनेशन समझ में आया? वही चल रहा है यहाँ पर, वो कंडक्शन करंट की बात हो रही है। जबकि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि एक स्फीयर है, उसके ऊपर दूसरा स्फीयर है, उसका नाम भी हमने रख दिया। क्या नाम रख दिया हमने? गॉसियन सरफेस। So when I say Gaussian surface, then it is electrostatics. When I say Amperian loop, it is MEC. बट दोनों एनालॉगस है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा थियरम है, कौन सा ऐसा थियरम है जो क्या है, सिमिलर है। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज सिमिलर टू गॉसेस थ्योरम। ठीक है, एनालॉगस अगर वर्ड पूछा एग्जाम में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि विच थियरम इज एनालॉगस टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ? सो आंसर इज गॉसेस थ्योरम। प्लीज टेक इट डाउन। Is this slide done? This is on displacement current. It is there in your textbook. I do not know which page number. If you have the textbook, displacement current is somewhere after, I think, कैपेसिटर के बाद होगा, वैन डे ग्राफ जनरेटर से पहले। Take down these two equations. They have not given, I don't think, have they given both the equations? They have given the explanation for the same. टू 208 पेज नंबर पे है। ओके, दोनों इक्वेशन दिया है। आई हैव नॉट चेक दैट पार्ट। सी डीवी बाई डी दिया रहेगा। या एप्सिलॉन और डी फाई बाई डी हम वापस पढ़ेंगे। माय नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी ईएमआई एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। अगेन एमईसी का जो बेस है वो लगेगा मुझे to understand the concept of electromagnetic induction and alternating currents. So I will finish this chapter in the next lecture,
and we will start with magnetic effect of electric current. हमारा electrostatics खत्म हो रहा है, खुशी मनाएंगे हम, क्योंकि बहुत हमने 11 से 12 तक, I hope electrostatics was a good journey for you. I hope you understood, and if you have any doubts, you can anytime tell me. हम काफी, yes, हम काफी, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, और एग्जाम में भी it is asked 4 questions from this chapter. तो आप सोच सकते हैं 4 क्वेश्चन. Four questions from this chapter will come. एक सफर ही कर रहे थे हम. बराबर. Is it over? Yeah, all the chapters लंबा सफर है, correct. इस साइड में सबसे बड़े चैप्टर्स हैं आपके जो रे ऑप्टिक्स वाले हैं, वो एक बड़ा चैप्टर है लाइट के ऊपर. फिर जो बड़ा चैप्टर आएगा वो एटम्स न्यूक्लियाई, एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लिया पे आएगा, जिसके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज न्यूक्लिया एंड द अदर इज इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स. वो एक बहुत बड़ा क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर है. फिर थर्मोडायनामिक्स है. फिर ये आएगा अभी, EMI और ऑल्टरनेटिंग करंट्स, बहुत बड़ा चैप्टर है. बट they are very easy. मतलब I feel that EMI and electrostatics, अगर आप they are completely formula based and concept based. अगर आपका concept clear है तो हो जाता है, और अगर आपको magnetism अच्छे से आता है और MEC अच्छे से आता है तो आपको EMI जरूर समझेगा. फिर वही principles apply करके आगे जा रहे हैं. Okay, so that's it from me today. Thank you for joining me early morning for the lecture. I hope we have lectures at 6 o'clock in the morning. आपको उठा देते हैं कि नहीं? Thank you so much. Bye bye and take care and have a great day ahead. Bye bye.